Hello kids, I'm Nancy Panchal, your educator and mentor on YouTube. आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 7 मोशन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर फिजिक्स में फॉलो करता है एंड इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहा, सिर्फ मोशंस क्या होता है वही कहा है। तो हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स से स्टार्ट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग ऑन फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. For the passengers moving in a bus, the roadside trees appear to be moving backwards. A person standing on the road perceives the bus along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. What do these observations indicate? Most motions are complex. Some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate, and few others may vibrate. There may be situations involving a combination of this. In this chapter, we shall learn first to describe the motion of objects along a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equation and graph. Later, we shall discuss the way of describing circular motion. अब मोशन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं. सपोज कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रोटेशन हो सकता है और वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है. अब सपोज हम एक बस में बैठे हैं. अब हम बस में जब ट्रैवल करते हैं तब जो साइड में से जो विंडो में से हम ट्री देखते हैं वो ट्री में पीछे जाते दिखते हैं और उसी जगह हम अपने बाजू वाले पैसेंजर को देखेंगे तो वो हमें स्टिल दिखेगा. बस यही होते हैं मोशन के टाइप्स. नाउ डिस्क्राइबिंग मोशन. Describe the location of an object by specifying the reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in village is 2 km north of railway station. We have specified the position of school with respect to railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point or the origin. अब हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक विलेज में एक स्कूल है जो 22 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से उसका डिस्टेंस है. अब इसमें हमने स्कूल के डिस्टेंस डिस्क्राइब करने के लिए रेलवे स्टेशन को सब्जेक्ट लिया और इस सब्जेक्ट को हम ओरिजिन कहते हैं. Now 7.1.1 Motion along a straight line. The simplest type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight line path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Let A, B, and C represent the position of an object at different instants. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C through B. The total path length covered by an object is OA plus AC, that is 60 km plus 35 km is equal to 95 km. This is the distance covered by an object. इसमें हमें ये एग्जांपल दिया है कि हमें O से A जाना है, वो 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर हमें A से B वापस कवर करना है, दैट मीन्स 25 किलोमीटर, और वापस B से C जाना है, मीन्स 10 किलोमीटर. तो टोटल करेंगे तो 60 प्लस 10 प्लस 25, तो टोटल हो गए 95 किलोमीटर. ये हमने डिस्टेंस कवर किया, पाथ लेंथ. To describe the distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of motion. There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. अब हम डायरेक्ट डिस्टेंस डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, सब चीज़ का मैग्नीट्यूड. तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लेंगे कोई फिजिकल क्वांटिटी तो उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं. From this example, can you find out the distance of final position C of the object from initial position O? This difference will give you the numerical value of displacement of the object from O to C through A. The shorter distance measured from the initial to the final position of an object is called the displacement. अब हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने कैलकुलेट किया कि O से C कितना डिस्टेंस हुआ तो वो हमें 95 किलोमीटर मिलता है. बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ दो ही चीज मैटर करती है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. हमारी इनिशियल पोजीशन O थी एंड फाइनल पोजीशन C, तो इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो 25 किलोमीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है एंड 95 किलोमीटर डिस्टेंस. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object?
Consider the example given in figure 7.1. For the motion of an object from O to A, the distance covered is 60 km and the magnitude of displacement is also 60 km. During its motion from O to A and back to B, the distance covered is equal to 60 km plus 25 km is equal to 85 km, while the magnitude of displacement is equal to 35 km. Thus, the magnitude of displacement is not equal to the path length. Further, we will notice that magnitude of displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. If we consider the object to travel back to O, the final position coincides with the initial position, and therefore the displacement is 0. However, the distance covered in this journey is equal to 120 km. Thus, two different physical quantities, the distance and displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. Now, इसमें हमें पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या डिस्टेंस इतना हो सकता है. तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. अब हम O से A तक जाएंगे तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर होगा. बट अगर हम कंसीडर करें O से वापस B तक जाने के लिए तो डिस्टेंस 85 किलोमीटर हो जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट O इनिशियल पोजीशन एंड B फाइनल पोजीशन लेके तो 35 किलोमीटर होगा. मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हर बार सेम होने जरूरी नहीं है. डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या फिर इक्वल होगा. अगर हम O से A एंड वापस A से O मतलब फुल ग्राउंड कवर करें तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर मिलता है, बट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो जाते हैं. मतलब इनिशियल भी O है एंड फाइनल भी O है. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट हमें 0 मिलता है. सो 7.1.2 Uniform motion and non-uniform motion. Consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meters in the first second and 5 more in next second, 5 meters in third second and 5 meters in the fourth second. In this case, the object covers 5 meters in each second. As the object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we came across motions where objects cover unequal distances in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a car, there are some instances of non-uniform motion. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हर एक सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो यूनिफॉर्म मोशन में, एंड अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. जनरली जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही सेंसेस होता है. Objects may take different amount of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. The rate at which objects can move be different. Also, different objects can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by an object in unit time. This quantity is referred to as speed. Now, objects same rate पे भी मूव कर सकते हैं, डिफरेंट रेट पे भी मूव कर सकते हैं. अब रेट का मतलब क्या? मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. मतलब जो डिस्टेंस एक सेकेंड में या फिर एक यूनिट टाइम में कवर किया उसे हम स्पीड कहते हैं. स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. ये दोनों सिंबल में से एक में से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर. To specify the speed of an object, we require only its magnitude. The speed of an object need not to be constant. In most cases, object will be in non-uniform motion. There, we will describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by total time taken. That is, average speed is equal to total distance traveled divided by total time taken. अब इसका मतलब हुआ कि हमें सिर्फ स्पीड का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वही चाहिए. स्पीड जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट ही हो. हम मोस्ट केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के देखते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होता एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इसलिए वो नॉन कांस्टेंट स्पीड देता है. ऐसे मोशन के लिए हम एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं. एवरेज स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें जो भी क्वेश्चन में जितने भी डिस्टेंस दिए हो और जितना भी टाइम दिया हो वो दोनों को डिवाइड करना होता है. The distance s in time t, then its speed v is equal to s by t. Let us understand by an example.
A car travels a distance of 100 km in 2 hours. Its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour at all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. मतलब हमें सपोज एक डिस्टेंस दिया कि 100 किलोमीटर एक कार ने ट्रैवल किया 2 घंटे में, तो हम इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे कि हमने 100 किलोमीटर पर आवर को ऊपर लिया और 2 आवर को नीचे, तो 100 डिवाइडेड बाय 250 ये आंसर आया। बट हमें पता है कि कार पूरे टाइम एग्जैक्ट 50 किलोमीटर पर आवर से नहीं चल सकती, कभी कभी वो उसकी स्पीड ज्यादा हुई होगी, कभी उसकी स्पीड कम हुई होगी। बस सिमिलरली ऐसे सब्सटेंसेस के लिए हम एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। Example 7.1. An object travels 16 meters in 4 seconds and then another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of an object? अब इसके लिए हमको डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा और टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो 16 plus 16 32 and 4 plus 2 6. 32 divided by 6 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। Now, speed with direction. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along its speed. The quantity that specifies both of these aspects is called velocity. Velocity is the speed of object moving in a definite direction. The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object's speed, direction of motion, or both. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of the rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculate average speed. अब वेलोसिटी मतलब जब मोशन कोई डायरेक्शन में स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। अब स्पीड में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलते हैं। वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं। और रही बात स्पीड की, उसको हम चेंज करने के लिए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगी। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculate speed. मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में फिर अलग अलग मैग्नीट्यूड से मूव करता हो तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के जैसे ही निकालेंगे। In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by an arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही हो, मतलब सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा हो, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम लेके उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे कि हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। नाउ बाय मैथमेटिकली v average is equal to u plus v by 2, where v average is the average velocity, u is the initial velocity, and v is the final velocity of the object. Speed and velocity have the same unit, that is meter per second. Now, rate change of velocity. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any interval is zero. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instants and at all different points of path. Thus, change in velocity of the object during any interval of time is not zero. Now, यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें डिस्टेंस और टाइम सेम यूनिट में कन्वर्ट होता है, इसलिए वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो। नाउ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वहां पे डिस्टेंस और टाइम अलग अलग ऑर्डर से चेंज होता है, दैट्स व्हाई इसकी चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। We have to introduce another physical quantity called acceleration, which is a measure of change in velocity of an object per unit time. That is, acceleration is equal to change in velocity per time taken. If the velocity of an object changes from initial value u to final value v in time t, the acceleration a is equal to v minus u by t. This kind of motion is known as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is in opposite direction of velocity. The SI unit of acceleration is meter per second square. Now, अब change in acceleration. Acceleration मतलब जो velocity change जो change आया velocity में per time उसको हम acceleration कहते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने कहा कि मतलब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब चेंज जीरो हुआ ना, अगर जीरो अपॉन टाइम करेंगे कोई भी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो मतलब हमें याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होती है।
अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं, एंड उसी जगह अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाती है मतलब ऑपोजिट मूव होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वो तो हम लॉजिकली भी देख सकते हैं, अगर यू की वैल्यू बढ़ जाएगी तो नेगेटिव साइन डोमिनेट करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं, आप बना भी सकते हैं। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब हुआ तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड मीटर और सेकेंड नीचे आएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर बन गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of object is said to be uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में सेम इंक्रीज हो रही है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, अगर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। सपोज आप टेरेस से या फिर कहीं से एक बॉल फेंकोगे नीचे, तो फिर आप देखोगे कि वो एक यूनिफॉर्मली नीचे जाता है, एक प्रॉपर स्पीड के साथ नीचे चला जाता है और एक्सेलरेट उसकी स्पीड बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो ये एग्जांपल वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving in non-uniform acceleration. मतलब कभी भी वेलोसिटी हम एक यूनिट टाइम में प्रॉपरली चेंज ना करें। सपोज मैंने यहाँ से चालू की कार चलाना और मैं 1 किलोमीटर तक मैंने 10 मीटर पर सेकेंड रखी, फिर उसके बाद के 1 किलोमीटर में मैंने 20 किलोमीटर पर सेकेंड कर दी, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं होती है। नाउ हम इसके सम कर देते हैं। The odometer of a car reads 2000 km at the start of trip and 2400 km at the end of trip. What if the trip took 8 hours? Calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. Now, अब कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दी है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इसको हमें आंसर मिल जाएगा। तो कार ने 400 किलोमीटर ट्रैवल किया, 2400 माइनस 2000 करके। अब टाइम कितना गया, तो 8 आवर्स इतना टाइम गया, तो एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 400 डिवाइडेड बाय 8, तो 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी। अब इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 50 किलोमीटर पर आवर को 1000 डिवाइडेड बाय 3600 या फिर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। 7.3 Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. Now इसमें अब एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो एवरेज स्पीड उसकी होगी 180 ऊपर डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस तो 180 कवर किया उसने, और टोटल टाइम टेकन में हम 60 सेकंड लिख देंगे, तो 180 डिवाइडेड बाय 60 करके हम 3 मीटर पर सेकंड आंसर मिला। अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ क्योंकि उषा ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे उसने खत्म किया, तो उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हुई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। टोटल टाइम तो चलो तो भी 60 सेकंड ही गया, तो 0 डिवाइडेड बाय 60 हमें 0 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी मिलती है। नाउ example 7.4, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. तो फर्स्ट केस में उसने रेस्ट पे से स्टार्ट किया था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई और फाइनल 6 मीटर पर सेकेंड, टोटल टाइम उसका 30 सेकेंड हुआ। तो फर्स्ट केस में हमें v और u पता है, तो 6 माइनस 0 करके डिवाइडेड बाय 30 करना है हमें, तो इसका एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। अब सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 6 है और हमने स्लो डाउन किया, 6 से 4 पे गए, तो यहाँ पे नेगेटिव आना था क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं जा रहा।
यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से कम है, दैट्स व्हाई आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे हम तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों केस के हम आंसर ऐसे फाइंड करेंगे। अब बाकी सारे इंटेक्स क्वेश्चन में अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 7.4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope it helped you. Please like, share and subscribe my channel and forward it to your friends.